Hello my dear students, once again I am here. This time we are going to start exercise 9.4 as we have already completed exercise 9.3. So in 9.34 what we are going to learn? We are going to learn the product of binomial with a binomial. In the previous exercise we have learned how to find out the product of monomial with monomial and how to find out the product of monomial with binomial. Today we are going to learn how to find out the product of binomial with binomial. So what is a binomial? Which contains two terms like a into b and c into d, c plus d, sorry. Now how we will multiply it? Look for multiplication of it. What we will do, the second bracket will be multiplied with both the terms of first bracket. Means a will be multiplied by c plus d, and since the sign in between is b is plus, so we will put positive sign, and then b will be multiplied by c plus d. So thereafter it will be ac plus ad. This you have already done in the previous exercise. So the only thing is that what you have done in the previous exercise, that you will have to do 2 times. जो पिछली एक्सरसाइज में किया है वो 2 बार करना है. पिछली बार हम क्या कर रहे थे? a का मल्टीप्लाई c प्लस डी में कर रहे थे. अब कर रहे हैं a प्लस b का. तो a प्लस b का मतलब पहले a का मल्टीप्लाई c प्लस डी में और फिर प्लस b का मल्टीप्लाई c प्लस डी में. सो आई गॉट प्लस बी सी प्लस बी डी. और इसके बाद अगर कुछ लाइक टर्म्स मिलती हैं तो हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और अगर सब अनलाइक हैं तो then the answer will be like this only. Okay, and on this only our exercise 9.4 is based on. इसी पर हमारी एक्सरसाइज 9.4 है. क्वेश्चन नंबर 1 को देखना शुरू करते हैं. मल्टीप्लाइंग द बाइनोमियल्स पार्ट 1 में आपके लिए कर रहा हूं. पार्ट 1 में क्या है? 2x plus 5 is to be multiplied with 4x minus 3. So what we have learned कि 4x minus 3 में पहले 2x से मल्टीप्लाई होगा और फिर 4x minus 3 में प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा. So 2x multiplied by 4x minus 3 and plus 5 multiplied by 4x minus 3. So this much question is the equation of exercise 9.3. This much is the equation of exercise 9.3. अब 2x का 4x में मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया 8x स्क्वायर. 2x का मल्टीप्लाई माइनस 3 में तो माइनस का 6x प्लस 5 मल्टीप्लाइड विद 4x, सो आई गॉट प्लस 20x and plus 5 multiplied by minus 3 is minus 15. Now you can see that these two are like terms. So these two are like, so they will be added or subtracted. Since their the sign are different sign है तो subtract हो जाएंगे. और मेरा आंसर होगा 8x square plus 14x minus 15. This way you will have to solve these multiplication of binomial. Okay, I will say tell you various other questions. सेकेंड पार्ट आप खुद कर पाएंगे, फोर्थ पार्ट आप खुद कर पाएंगे. मैं थर्ड पार्ट आपको बता रहा हूं बिकॉज थर्ड पार्ट कंटेन्स अ डेसिमल नंबर. उसमें एक डेसिमल नंबर है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं. अदरवाइज दैट इज ऑल्सो सेम, वो भी ऐसे ही है. ठीक है. यस. व्हाट इज द क्वेश्चन? 2.5L. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट थर्ड. 2.5L plus 0.5M multiplied by 2.5L minus 0.5M. मिस्टेकनली मैंने प्लस वाला पॉइंट पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज when we multiply 3 with 5 and 5 with 3, answer is going to remain same. So you can write any of the term once at first place, any of the term later on. Now this entire bracket, ये पूरे bracket का multiply 2.5L में, and the same way this entire bracket will be multiplied with 0.5M. So 2.5L multiplied by 2.5L minus 0.5M and plus 0.5M will be multiplied by 2.5L minus 0.5M. अब क्या होगा? 2.5 का 2.5 में मल्टीप्लाई कर लीजिए. 2.5 का स्क्वायर हो गया तो ये क्या हो गया? 6.25.
और L का L में मल्टीप्लाई होकर L स्क्वायर। ठीक है, अब 2.5 L का 0.5 M में बीच में साइन है नेगेटिव, तो हम भी नेगेटिव ही लगाएंगे। 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इज 1.25 LM। सिमिलरली 0.5 का 2.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1.25 LM, और फिर लास्ट में प्लस माइनस माइनस 0.25 M square. Now these two are like and they are equal but opposite in sign, so they will be cancelled. Equal opposite sign होता है तो cancel हो जाता है, और 6.25 L square माइनस 0.25 M square हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई एम वेरी श्योर यू आर एबल टू गेट मी। आराम से आपको समझ में आ रहा है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट करके बताता हूं। फिफ्थ में वैसे कुछ नहीं है, बस एक स्क्वायर लग गया है, 2pq प्लस 3q स्क्वायर। 2pq प्लस 3q स्क्वायर इज टू बी मल्टीप्लाइड विद 3pq माइनस 2q स्क्वायर। 3pq minus 2q square. So what we are going to do, this entire term is going to be multiplied with 2pq and this entire bracket is going to be multiplied with 3q square. पहले 2pq से सबका मल्टीप्लाई, 3pq माइनस 2q स्क्वायर का, और फिर 3q स्क्वायर से मल्टीप्लाई 3pq माइनस 2q स्क्वायर। चलो जी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 जा 6 p स्क्वायर q स्क्वायर, 2 2 जा 4 नेगेटिव 4 पी क्यू क्यू, क्योंकि पी क्यू तो पहले से ही था, एक क्यू स्क्वायर और हो गया तो ये आ गया पी क्यू क्यू। इसी तरह से यहाँ आया प्लस का 9 पी क्यू क्यू, और इन द एंड माइनस का 6 क्यू टू द पावर 4, क्योंकि क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर मिलकर बन गए क्यू टू द पावर 4। अब दीज टू आर लाइक है तो 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 9 और 4 will give me 5pq cube minus 6q4. So this way, this will be the answer for your part number 5. I hope you can solve these questions. Now I am going to solve part number 6 for you. एक part 6 और मैं आपको करके दिखाता हूँ, because that contain fraction. उसमें कुछ fractions involved हैं। थ्री बाय फोर ए स्क्वायर in first bracket 3 by 4a square plus 3b square, and in the second bracket, अच्छा 4 भी बाहर लिखा हुआ है उसमें, तो जो 4 बाहर लिखा है उसे मैं पहले ही अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं। इट विल बिकम 4a स्क्वायर माइनस 8 बाई 3b स्क्वायर। ये है जी हमारा, क्या करना है, this entire bracket will be multiplied by 3 by 4a square, this entire bracket will be multiplied by 3b square। चलो जी कर लेते हैं, तो 3 by 4a square will be multiplied by 4a square minus 8 by 3b square, and plus 3b square will be multiplied by 4a square minus 8 by 3b square। ठीक है जी। अब 3 बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3a की पावर 4। ठीक है, आप चाहे तो इसे रफ में भी कर सकते हैं, 3 बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 3। अब 3 बाय 4 का मल्टीप्लाई 8 बाय 3 के साथ, तो 3 से 3 कैंसिल, 4 2 जा 8, सो आंसर आ गया नेगेटिव 2a स्क्वायर b स्क्वायर। इस तरह से ये काम हम रफ में कर सकते हैं। 3 4 जा 12, 12a स्क्वायर b स्क्वायर, और बाद में जब 8 बाई 3 का मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो नेगेटिव 8b टू द पावर 4। सो दिस वे this will help you to solve this question easily. Now again we are having these two terms as like, so 3a to the power 4 plus 10a square b square minus 8b to the power 4. I hope this is done. This way you will see it, and then you can see that you can solve all the question of all the parts of question number 2.
So question number 1 is done, question number 2 is done. Now let's see question number 3. Question number 3 देखते हैं. अब question number 3 में with multiplication he is asking you to do something else. Multiplication भी करा रहा है और बाद में like terms, unlike terms को अलग अलग like terms को add subtract करा रहा है. एक से ज्यादा बार आपको multiply करना पड़ सकता है. That is the only thing in question number 3. Otherwise it is all like that only. पहला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज टू बी मल्टीप्लाइड विद एक्स प्लस 5 और बाद में 25 ऐड भी है. चलो ठीक है. तो x प्लस 5 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में और x प्लस 5 का मल्टीप्लाई माइनस 5 में. Now whenever the sign is negative outside the bracket, you will change the sign inside the bracket. If it is negative, this will make change the sign. चलिए जी, तो ये आ गया x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर. नेगेटिव साइन है, दोनों पॉजिटिव को नेगेटिव बना देगा. नेगेटिव 5x, नेगेटिव 25 और ये वाला पॉजिटिव 25. बस ये दोनों कैंसिल और जो बचा हुआ है वो आंसर. एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x. सेम वे यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 3 भी इसी तरह से है. अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं पार्ट नंबर 4. इसी का पार्ट 4 मैं आपको करके दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 3 का. If you are having any doubt regarding any part, feel free to ask me. I will tell you. You can call me at my number. A plus B is to be multiplied by C minus D. A minus B is multiplied by C plus D. And 2AC plus BD. Okay, so this way now I will multiply. First of all, A is multiplied by C minus D plus B is multiplied by C minus D. ये तो इसका हो गया. इसके लिए A will be multiplied by C plus D and negative B will be multiplied by C plus D and in the end 2 का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 2AC plus 2BD. चलो जी देखते हैं क्या आंसर आ रहा है. A का मल्टीप्लाई C में तो AC, A का मल्टीप्लाई D में तो नेगेटिव AD, B का मल्टीप्लाई C में तो पॉजिटिव BC और B का मल्टीप्लाई D में तो नेगेटिव BD. देन ये तो यहां तक की बात. अब AC प्लस AD, नेगेटिव माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे. मुझे मिलेगा माइनस BC माइनस BD प्लस का 2AC और 2BD. अब देखिए पॉजिटिव AC will give me 2AC. ठीक है. नेगेटिव AD और पॉजिटिव AD कैंसिल. पॉजिटिव BC नेगेटिव BC कैंसिल. नेगेटिव BD और नेगेटिव BD will give me नेगेटिव 2BD. और साथ ही में क्या था 2AC प्लस 2BD. अब पॉजिटिव 2BD और नेगेटिव 2BD भी कैंसिल, तो आंसर आ गया 4AC. दिस वे यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस तरह से इनको सॉल्व करेंगे आप. अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं 6th पार्ट. उसमें क्या हो रहा है इन 6th पार्ट, मोनोमियल इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद ट्राइनोमियल. कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, मोनोमियल ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई हो कि बाइनोमियल से, एक ही तरह से आंसर आएगा. 6th पार्ट वी आर गोइंग टू डू. क्या है? x plus y is going to be multiplied by x square minus xy plus y square. Is it? Yes. So अब क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट का x के साथ मल्टीप्लाई, इस पूरे ब्रैकेट का y के साथ मल्टीप्लाई. बस इतना ही तो काम है. x का मल्टीप्लाई
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ और प्लस वाई का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ। अब क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस का वाई क्यूब। अब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल। आंसर क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस। ठीक है, समझ आई बात। अब इसके बाद लेट मी टेल यू द लास्ट पार्ट ऑफ इट, थर्ड का लास्ट पार्ट। उसमें क्या हो रहा है, एक ट्राइनोमियल का ट्राइनोमियल में मल्टीप्लाई। नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई अ ट्राइनोमियल विद अ ट्राइनोमियल। So, for multiplying trinomial with a trinomial, this is the eighth part. A plus B plus C is going to be multiplied with A plus B minus C. चलिए जी, तो इस पूरे ब्रैकेट का पहले A से मल्टीप्लाई, इस पूरे ब्रैकेट का फिर B से मल्टीप्लाई और फिर इस पूरे ब्रैकेट का C से मल्टीप्लाई। This is the way we are going to do it. A plus B minus C, A प्लस बी माइनस सी और A प्लस बी माइनस सी। चलो जी, जो लाइक होंगे वो ऐड हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दैट इज ओनली थिंग इन द एंड। सो ये हुआ ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही है, प्लस का ए बी और प्लस का ए बी, तो ये हो गए हमारे 2ab, माइनस का ए सी और प्लस का ए सी ये कैंसिल, बी स्क्वायर ए बी पहले ही आ गया, अब बी स्क्वायर और माइनस का बी सी और प्लस का बी सी ये भी कैंसिल, तो आ गया हमारा माइनस का सी स्क्वायर। दिस वे दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब एक और बड़ा फेमस क्वेश्चन है इसमें, सेवंथ पार्ट, वो सेवंथ पार्ट भी देख लेते हैं चलो, और देन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑल योर्स। बचे हुए जितने भी पार्ट हैं वो सब आपके। ठीक है, सेवंथ पार्ट में क्या कर रहे हैं, डेसिमल है उसमें, बस इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। 1.5x माइनस 4y is going to be multiplied with 1.5x plus 4y plus 3 minus 4.5x plus 12। ये है हमारा क्वेश्चन। तो इस पूरे ब्रैकेट का पहले 1.5x के साथ मल्टीप्लाई, फिर इस पूरे ब्रैकेट का माइनस के 4y के साथ मल्टीप्लाई, और इन द एंड लाइक टर्म्स ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, दैट्स इट। चलिए देखते हैं। सो 1.5x का मल्टीप्लाई हुआ 1.5x प्लस 4y प्लस 3 के साथ, माइनस 4y का मल्टीप्लाई 1.5x प्लस 4y प्लस 3 के साथ, और माइनस 4.5x और 12y लाइक के साथ। इनका कुछ नहीं होना, ये तो लास्ट में इनके साथ जैसा कोई लाइक है तो वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दैट्स इट। चलो 1.5 का 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 2.25x स्क्वायर। 1.5 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6.0xy, और 1.5 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा प्लस का 4.5x। अब दूसरी चीज, सिंस देयर इज नेगेटिव साइन आउटसाइड द ब्रैकेट सो ऑल द साइन विल बी चेंज, सिंस ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव सो दे विल बिकम नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव 6.0xy नेगेटिव 16y स्क्वायर एंड नेगेटिव 12y, और लास्ट में 4.5x और प्लस का 12y। अब प्लस का 12y और माइनस का 12y तो मुझे यही दिख गया, कैंसिल हो गए। 6.0 पॉजिटिव 6.0 नेगेटिव ये भी कैंसिल, 4.5 पॉजिटिव 4.5 नेगेटिव ये भी कैंसिल, नो तो बचा क्या 2.25
x square minus 16y square, or this way this will be the solution of this all. So you all will complete the exercise 9.4 and click the pictures of your homework and will send it to me by today evening. Okay, by today evening you all will send me the homework of exercise 9.4. Okay, complete your work and take care of yourself.